مجھے ایک تھوڑی سی میں اپنی اس کے لیے وضاحت چاہوں گا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ شعور جو ہے نا وہ مغز سر کا کام ہے، یہ اس کی مرہون جی منت ہے، تو کیا اس پہ سائنسدانوں کا ابھی تک اجماع ہے؟ اس پہ کوئی اختلافی ابھی تک کوئی تحقیق یا کوئی نہیں دیکھے؟ نہیں، میں خالی اجماع والی بات پہ ہنس رہا ہوں کہ اجماع تو آج تک جی جی، ڈیفائن ہی مجھے نہیں ہو سکے کہ مجھے اجماع ہوتا مجھے کیا سمجھ مجھے پتا ہے ہے۔ آپ کیوں وہاں سے تھا نا، اسی پہ آپ وجہ نہیں اجماع سے برا دیکھیں. اب سائنٹیفک فیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ صرف سائنسدان بلکہ ہر کوئی اس کو مانے گا نا، وہ یعنی وہ تجرباتی مراحل سے گزر کر ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اس کا انکار کوئی اندھا ہی کر سکتا ہے یا کوئی دماغ پھرا انسان کر سکتا ہے اس مفہوم میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ ایسے اتفاقی متفق علیہ فیکٹ ہے یہ کہ چلے میں شعور. آپ کو کچھ چیزیں میں جی کچھ جی چیزیں بتاتا ہوں. جی میں آخر میں پھر اسے اجماع والی بات پہ آؤں گا. تو دیکھیں، ریسرچ تو بہت زیادہ ہو چکی ہے ابھی، تقریباً آج سے 8 یا 10 سال پہلے. آج بھی وہ ایکسپیریمنٹ جاری ہیں، لیکن خیر وہ پبلش ہوئے تھے کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ انسان کا شعور جو ہے وہ کہاں کام کرتا ہے. تو میں بہت مختصراً بتاؤں تو انہوں نے لوگوں کو ڈالا ایم آر آئی مشین میں، اس کو کہتے ہیں ایف ایم آر آئی اور فنکشنل ایم آر آئی. اور اس میں انہوں نے ان کو بہت سادہ سوال دیا، 2+2 کتنا ہوتا ہے، واشنگٹن کون سے ملک میں ہے، اس طرح کے سوال دیے. اور اس کے بعد انہوں نے سوال دیے یس اور نو والے، جس میں آپ کو چوز کرنا تھا. ٹھیک ہے؟ تو چوز یہ کرنا تھا کہ آپ کو چائے پسند ہے یا کافی پسند ہے، آپ کو کتے پسند ہیں یا آپ کو بلیاں پسند ہیں، اس طرح کے سوالات تھے. صحیح صحیح ہے، یس اور نو والے. تو اس میں کمال کی بات یہ ہوئی کہ جو ایف ایم آر آئی جو برین کی کانسٹنٹ امیجنگ کر رہا تھا، وہ ان ایریاز کو پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا اس نے کہ وہ اس یس اور نو کا آنسر اس انسان کے تقریباً 6 سیکنڈ پہلے وہ سائنسدان بتا سکتے تھے کہ یہ اس کا جواب کیا دے گا. اچھا. تو ہمارے لیے 6 سیکنڈ بہت چھوٹا سا وقت ہے، لیکن دماغ میں جو جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو امپلسز چلتی ہیں، اس کے لیے بہت لمبا ٹائم. اس کو اگر میں صرف سمجھانے کے لیے اگر بتاؤں تو یہ دنوں کا فاصلہ ہے. یعنی کئی دن پہلے جو ہے وہ اتنا زیادہ یہ پہلے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ڈیسیجن لے گا. ٹھیک ہے؟ کہ یعنی یہ کہ ہمارا شعور جو ہے اس کو دماغ کے اندرونی حصے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ کہنا ہے. میں آپ صحیح سمجھا پا رہا ہوں صحیح، اپنی بات، جی 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 یعنی کہ جی، وہ یہ بہت نہیں ہوتا. اچھا سے. لیکن اس کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا ڈیسیجن ہے، جبکہ یہ ڈیسیجن جو ہے دماغ میں کہیں اور ڈیسائیڈ ہو چکا ہے پہلے ہی. اور ہم اس کو ایم آر آئی کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا، ایم آر آئی میں دیکھتے اس طرح کے مختلف حصے ہوتے ہیں دماغ کے، جو کہ ہاں یا نہ، پسند ناپسند میں ان میں ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی جو ہے وہ پسند ناپسند کیا ہوگی. یعنی کہ اگر آج وہ میں تجربہ کروں لوگوں پہ کہ بھائی آپ کو کمیلا ہیرس کو ووٹ دیں گے پسند ہے یا ٹرمپ پسند ہے، تو میں ان کے جاننے سے 6 سیکنڈ پہلے بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا کیا آنسر دیں گے. یعنی جب وہ درست، خود بالکل صحیح اپنے، ہوتا ہے وہ. بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے وہ. تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے کمال ہیرس کے طرف جاتے جاتے آپ ٹرمپ پہ چلے گئے. ہاں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح صحیح. 70% سے زیادہ وہ سائنسدان پہلے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا پسند، اس سے پہلے کہ اس شخص کو خود پتا ہو کہ اس کی پسند کیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی اس کو خود شعوری سے پہلے پتا چل گیا کہ اس کا کیا ہوگا. تو یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات. اچھا، تو اس وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کانشیسنیس جو ہے وہ برین میں ہی ہوتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ سائنٹسٹ متفق ہیں، تو نہیں، سائنٹسٹ متفق نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ بھی انسان ہوتے ہیں. جی جی. مطلب وہ سپر نیچرل نہیں ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی سائنٹسٹ کی بیوی بیمار ہے کینسر سے یا اس کا بچہ بیمار ہے، تو وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے، وہ ہر حال میں کرے گا. اسی طرح اس کی اپبرنگنگ اگر کسی مذہبی گھرانے میں ہوئی ہے تو وہ چاہے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ میرا مذہبی تعلق رہے پیدا. تو وہ ان سائنٹیفک اسٹڈیز کو بھی درست مانتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں خدا ہے. جیسے ایلوین پلیٹنگا جو ہیں، وہ چرچ کے اپوائنٹڈ کہنا چاہیے فلاسفر ہیں. فرانسس کولنز ہیں جو کہ بہت مشہور سائنسدان ہیں جینومک اسٹڈیز میں، لیکن ان کو بھی مذہبی تجربہ ہوا. انہوں نے کرائسٹ کو دیکھا ایک آبشار میں یا کسی ایسی چیز میں، تو وہ خدا کو مانتے ہیں. اب یہ وہ انسان ہے جو سائنس کو مجھ سے 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہیں تو انسان ہی. تو کوئی بھی انسان، اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی تم کچھ نہیں ہو، مر کے مٹی ہو جاؤ گے،
तो वो नहीं पसंद करेगा। हमें एक कंफर्ट चाहिए, हमें किसी चीज की कंफर्ट एक चाहिए होती है। जैसे जो है वो बच्चे को सिर्फ खाना पीना नहीं चाहिए होता, उसको माँ बाप की मोहब्बत तवज्जो भी चाहिए होती है। ऐसे ही हम इंसान हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये इन्फिनिट यूनिवर्स है 13 बिलियन साल पुरानी, उसमें हमें ये 60-70 साल मिले हैं, तो ये बहुत कम है। तो वो चाहता है कि ऐसी चीजें हों। तो हाँ, कोई ये नहीं होता कि अगर मैं 100 साइंटिस्ट से पूछूंगा तो 100/100 ये कहेंगे खुदा नहीं है, कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती। लेकिन वो इंसान है तो वो कहेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जो तजर्बात अब तक हुए हैं शऊर पे, तो उसमें शऊर इंसानी दिमाग की कारस्तानी है, जो इंसानी दिमाग में ही पैदा हुआ है। और उसकी दूसरी दलील ये है कि हमारे जो दिमाग है हमारी बॉडी के हिसाब से वो सबसे बड़ा है। किसी इंसान का दिमाग, सॉरी किसी भी जानवर का दिमाग इतना बड़ा नहीं होता रिस्पेक्ट टू बॉडी साइज। अब कोई कहेगा सुन के कि हाथी का दिमाग तो बड़ा होता है इंसान से। हाँ वो बहुत होता है, बड़ा। लेकिन हाथी भी बहुत बड़ा होता है। तो बॉडी साइज के हिसाब से इंसानी दिमाग सबसे बड़ा है। और हमारा जो नहीं तो नियो उसका कॉर्टेक्स है। शूर भी फिर ज्यादा है, उसका तो शूर जी भी हाँ। ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाथी को हमसे ज्यादा शूर। उसका उसका जिस्म बहुत बड़ा है, तो उसके लिहाज से उसका दिमाग बहुत छोटा है। सही सही यानी सही उसके जिस्म के सही। लिहाज, हमारा दिमाग हमारे जिस्म के लिहाज से बहुत बड़ा है। नहीं, छोटे हमारे बड़े हमें से आप फिजिकल वो करके बता रहे हैं, वजन के हिसाब से बोल रहे हैं या एक? फिजिकल 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 अच्छा बता रहा हूँ, यानी अच्छा कि अच्छा। कॉन्शियसनेस पैदा होती है जब ब्रेन कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है। ठीक। यानी जब हमारे तकरीबन एक 800 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो पता नहीं कितने बिलियंस कनेक्शन बनाते हैं, उससे कहीं जाके शऊर पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, ये हम नहीं जानते। तो इसी वजह से कई लोग आज भी कहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, कि नहीं शऊर खुदा की तरफ से आया है। ये बिल्कुल गॉड ऑफ द गैप्स एनालॉजी है, कि जहां पे आपको नहीं मालूम वहां आपने खुदा को फिट कर दिया। ऐसे ही शऊर में हम मुकम्मल तौर पे नहीं पहुंच सके, तो हम कह देते हैं कि भाई ये तो शऊर तो खुदा से आया, देखो साइंस तो आज तक ये नहीं बता सकी। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स है बेचारी, कि वो क्वांटम मैकेनिक्स को लेके आप खुदा से लेके तो कृष्णा तो शिव तो बुद्धा, सब कुछ आप क्वांटम मैकेनिक्स से साबित कर सकते हैं। तो ये साइंस की एक बदकिस्मती है कि जब वो मखसूस जबान में बात करती है तो लोग समझ नहीं पाते। जब वो उसको वाटर डाउन करके आम पॉपुलर सतह पे बयान करती है, तो उसको हम लेके उसमें मजहब घुसा देते हैं। मतलब तो ये मतलब इसका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जैसे नहीं अगर नहीं। मैं डॉक्टर हूँ हम्म, और मैं आपको कोई बीमारी समझा रहा हूँ, तो मुझे आपको आपके लेवल पे आके समझाना पड़ेगा। मैं आपको मेडिकल बिल्कुल। नॉलेज मेडिकल जबान में नहीं समझा सकता। नहीं। लेकिन जब बिल्कुल। आप वो समझेंगे तो आप उसको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से समझेंगे। तो जो मैंने ठीक। समझाया था ऐसे। वो कुछ और होगा, जो आपने समझाया वो कुछ और होगा। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है, समरी ये है कि मेटाफिजिक्स की कोई फिजिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। सही सही ना सही। फिजिकल एविडेंस मौजूद है, ना साइकोलॉजिकल एविडेंस मौजूद है। ये सिर्फ इंसानी तखय्युल की कारस्तानी है, कि जिसने एक अलग दुनिया क्रिएट की है इस कायनात से बाहर। वो उसको सही। सोच सकता है, लेकिन चूंकि वो तखय्युल करने के काबिल है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, वो हकीकत नहीं है। मतलब हकीकत ठीक से उसका कोई ठीक। ताल्लुक नहीं है। साइंस या इल्हाद यहाँ पे खड़ा हुआ है। यानी इसकी ठीक। शुरुआत ये हुई थी कि खुदा नेचुरल है, खुदा अपना अमर नेचर में करता है, तो फिर साइंस या इंसानी रीजन उसको समझ सकता है। और जब खुदा को आप अपने लेवल पे ले आए, तो फिर आपने देख लिया कि ना कोई खुदा है, ना उसका कोई अमर है, सिर्फ नेचुरल लॉज हैं जो काम करते हैं, जिसकी फंक्शनिंग को इंसान समझता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही। बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है ये टीचिंग भी करते हैं मेडिकल के, पढ़ाते भी हैं आप? जी, मैं पढ़ाता हूँ हाँ, जी। जी जी, वाकई में मतलब जिस अंदाज से आपने चीजें समझा, एक उस्ताद ही इसी तरह समझा सकता है। शुक्रिया। क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा एक छोटा सा टीचर हूँ ना, तो मुझे अंदाजा है कि टीचर या उस्ताद जी जी और जी एक वैसे किस आदमी जो फर्क होता है ना, उसको ये होता है मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने इनको इस तरह से ये चीज समझानी। तो बहुत मेहरबानी सर। एक चीज आपने कही थी कि मैं बताऊंगा, या बात पूरी हो गई यहाँ पर आपकी? ओह नहीं नहीं, वो हाँ वो डार्क मैटर डार्क एनर्जी वाली, जी जी जी। हाँ, तो डार्क मैटर। अक्सर अक्सर ये कहा जाता है कि खुदा जो है वो डार्क मैटर की तरह है, क्योंकि डार्क मैटर जो है वो ना दिखाई देता है, ना हमारे टेक्नोलॉजी जो है उसको नाप सकती है।
ना जो है वो हम उसको देख सकते हैं, ना उसको हमारे आला डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि खुदा जो है वो डार्क मैटर की तरह है, और उसका अमर जो है वो डार्क एनर्जी है। सो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आसान अल्फाज में ये है कि जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी हमें, जिसको हम आज हकीकत समझते हैं कि हकीकत का बेहतरीन एक्सप्लेन, हकीकत की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें मसला ये हो गया कि कई, जब हमने सितारों को देखना शुरू किया, तो कई सितारे वहां पे नहीं है जहाँ पे उनको होना चाहिए था अपने मदार के हिसाब से। तो इस तरह पता चला कि वहां पे कोई और सोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट कर रही है, जिससे रोशनी भी रिफ्लेक्ट हो रही है और उसकी, सितारे की पोजीशन भी दूसरी है। ये तो एक ऑब्जर्वेशन थी, तो हमने इसको डार्क मैटर का नाम दिया। इसको ढूंढने की बेतहाशा कोशिशें आज तक हुई हैं, उसमें कोई इसका नहीं मिला। डार्क मैटर जो है वो हमारी कायनात में मुसलसल जारी और सारी है, लेकिन हम हमारे किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट नहीं करता, उसके साथ कोई उसकी फ्रिक्शन कुछ नहीं होती। वो वैसे ही गुजर जाता है हमारे अंदर से या कायनात के अंदर से। और दूसरी चीज जो ये महसूस हुई, वो थी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि कायनात बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन जितनी ग्रेविटी है कायनात के अंदर मैटर की वजह से, उसकी रफ्तार, उसके हिसाब से रफ्तार बहुत ज्यादा है। तो फिर मालूम हुआ कि कोई और एनर्जी भी है जो कि इस कायनात को फैला रही है। उसका नाम फिर डार्क एनर्जी रखा गया। सही। ठीक है। अच्छा, तो इसको अब ये कहा गया कि भाई ये खुदा को समझने का आसान तरीका है कि देखो, डार्क मैटर है जिसको हम आज नहीं समझते, डार्क एनर्जी जिसको हम आज नहीं समझते, तो खुदा ऐसे काम करता है। ये आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको आप जरा सी गहराई में देखेंगे तो बात फिर वो आ जाती है कि डार्क मैटर को हमने देख नहीं सकते, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास फिजिकल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोजिशन ऑफ स्टार्स। डार्क एनर्जी को हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते। वो जो बहुत डार्क अच्छा जी। एनर्जी है उसको भी हम देख नहीं सकते, उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, उसकी कोई इक्वेशन भी मौजूद नहीं है। लेकिन उसका सबूत मौजूद है, इनडायरेक्ट, कि कायनात में जितना मैटर है उसके हिसाब से इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन वो मौजूद है। तो इसका मतलब है कोई डार्क एनर्जी है, कोई चीज। सही। तो दोनों जो चीजें जो हमारी फिजिकल एक्सपीरियंस से बाहर हैं, हमारे टाइम, वो भी हमारे टाइम स्पेस के अंदर हैं, और उनके इफेक्ट्स जो कतई फिजिकल हैं, उनको भी हम मेजर कर सकते हैं या उनके बारे में जबरदस्त। अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो खुदा का अमर है वो ऐसे नहीं दिखता। यानी खुदा का सही। अमर हमेशा असबाब के पीछे होता है। अब इसकी एक मिसाल जैसे कुरान मजीद से अगर मैं आपको दूं, तो हजरत खजर अलैहिस्सलाम का वाकया है कि वो, आप, अल्लाह ने उन सबको अपनी तरफ मंसूब किया कि उन्होंने किश्ती तोड़ दी, उन्होंने बच्चे को कत्ल कर दिया, उन्होंने दीवार सीधी कर दी। तो ये खुदा का अमर था, लेकिन ये असबाब में ही जाहिर हुआ। दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसको मजहबी तनाजुर के अलावा बताऊं, तो वो ये होगा कि खुदा के अमर को इंसान जान नहीं सकता, क्योंकि वो तो असबाब के पीछे छुपा हुआ है। यानी फॉर एवरी कॉज देर इज अ नेचुरल एक्सप्लेनेशन। तो जब वो हम्म। जान नहीं सकता तो वो मानने का मुकल्लिफ भी नहीं है। ठीक है, कि जब बिल्कुल हर सही। उसके सामने सिर्फ सबब ही है, तो वो कैसे मानेगा कि इसके पीछे कोई गैर मरी, कोई गैर कायनाती फोर्स भी मौजूद है? वो नहीं मान सकता। तो इल्हाद का मुकदमा यही है कि बाकी सारे आपने जो चीजें बनाई हैं वो जहनी काविशें हैं इंसान की। हकीकत में सिर्फ नेचुरल साइंस या नेचुरल लॉज ही हैं जिसको इंसान समझता जा रहा है। तो सही। पहले हमारे पास रीजन था, रीजन के बाद साइंस आई, और अब 19 सेंचुरी से हमारे पास एक और चीज आ गई जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो अब रीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके साथ अब इंसान का इल्मी सफर आगे से आगे चलता जा रहा है, और फिर वो मजीद कायनाती राज जो है वो डिस्कवर करेगा। लेकिन जो डिस्कवर करेगा वो भी नेचुरल ही होंगे, यानी वो माबादु तबियाती नहीं होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी साइंस तो मैटर की बात करती है, मजहब मैटर की इससे बाहर की बात करता है। ठीक है, लेकिन उसका सबूत क्या है? ये कहने को तो मतलब, अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में कहूँ, आसान अल्फाज में, हम्म। तो अगर खुदा का, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अल्लाह मौजूद है, और मैं कहूंगा कि नहीं जूस मौजूद है जो यूनानी देवता था, तो उन दोनों की दलील आप कहाँ से लाएंगे? आपके पास अपना स्क्रिप्चर है, उनके पास अपनी इलियाड है, ओडेसी है, उनकी अपना स्क्रिप्चर है। तो फिर कहाँ से लाएंगे आप? तो इल्हाद यहाँ पे मौजूद है कि दलील कोई मौजूद नहीं है किसी माबादो तबियाती हकीकत की। जबरदस्त, बहुत अच्छा।